yet another Midweek Magic session. And I feel so happy and blessed to just look back the time it's been more than 3 months now. And every Wednesday we have been here. We haven't even missed one session on any of the Wednesdays. And I really thank all the trainers who have been supporting Rapid Mile. That includes Balram Talreja, Sanjeev Mishra, Dr. Anil Alal, who have given their blood and sweat and tears to make sure that the sessions are there on time. And we make sure that we are backup for each other and the sessions keep running. The Rapid Mile training company has been there for almost 15 years now, and we have been taking trainings on law of attraction and the mind power related trainings. And due to Corona, yes, we definitely shifted our focus from the classroom trainings to the online trainings. But yes, it has been a blessing in disguise, and we are able to connect with more people from across the world. And this training is a proof that we have people from across the globe joining here for the sessions. So thank you, everyone. Today's session would be taken by Mr. Balram Talreja. The topic is manifestation. Balram Talreja has been taking training in sessions for almost 30 years now, and he is such an experienced trainer, and we are pleased to and really grateful to him that he is taking out time and taking these sessions, and that too completely or free of cost. And that's how we are able to uh, uh, share this all knowledge also with you. Thanks, Balram, sir. And now on to you now. Please go ahead with the session. Thank you, Shahad Bhai, and good evening, everybody. First of all, we shall be going for 3 rounds of Pranav Pranam Om chanting, which entirely changes the vibration of your body, of your mind, and of your surrounding. So take Gyan Mudra, touching the first finger to the tip of the thumb, palms up, keep in the center of the thighs, and keep your body up, straight, relaxed, and steady. Eyes closed. Now pay the attention to the center of eyebrows. Slowly, first you have to breathe in, then U, and Ma. The ratio will be 1 is to 2 is to 4. You start with a single, double, U, and Ma 4 times. Slowly breathe in. Relax. Keep your eyes closed. Relax forehead. Body has to be upright, straight, relaxing, and steady. Very gently, your eyes are closed. Now pay the attention at your both the nostrils and watch your breath. दोनों ही नासिकाओं के छिद्रों पर अपने ध्यान को एकाग्र करें और सांसों के आवन जावन पर, जो सांसें आ रही हैं जा रही हैं, उनके प्रति सजग, जागरूक, साक्षी और तटस्थ रहें. Be aware about your breathing, conscious, passive watcher. Slowly and slowly,
Get closer to your breathing. सांसों की नजदीकियां जितनी ही ज्यादा होगी, मन उतना ही जल्दी शांत होगा. The more closer you to your breathing, the more calmer you start feeling. इतने करीब अपनी सांसों के चले जाएं. You can feel the sensation of your breathing, thermal sensation, coolness of every breath coming in and warmness of the breath going out. अंदर जाते हुए सांस की ठंडक और बाहर जाती हुई सांस की गर्माहट को दोनों ही नासिकाओं के छिद्रों पर at both the opening of the nostrils. Feel it. महसूस करें. As you continue with this, the consciousness changes from body to mind, mind to intellect, intellect to the self, and then to the supreme self. Very slowly, gently, open your eyes. Once again, welcome to all of you to the wonderful session, Manifest Your Desires. हमारे मन में कई प्रकार के विचार उठते हैं. पॉजिटिव, नेगेटिव, रूटीन, waste, and even the toxic thoughts. Mind power says every thought becomes things. What you hold in your mind, you hold in your hands. विचार वस्तु बन जाते हैं. जो आपके दिमाग में होता है, मन में विचारों के रूप में होता है, वही आपकी जिंदगी की तस्वीर बनती है. लेकिन क्या हर विचार जो इच्छा बनकर, जो गोल बनकर, जो एस्पिरेशन बनकर हम लेकर चलते हैं हमारे गोल्स को, चाहे वो मे बी टू अवर बॉडी, फाइनेंशियल फ्रीडम, जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप, रिक्रिएशनल गोल्स एंड स्पिरिचुअल गोल्स और चैरिटी. बहुत सारे गोल्स के साथ में, डिजायर के साथ में हमारा जीवन चलता है. लेकिन हम अपने जीवन में वो क्यों नहीं प्राप्त कर पाते जो हम चाहते हैं, जो हमारी डिजायर्स होती हैं. मुझे बहुत सारा धन मिल जाए, मेरे संबंधों में मिठास आ जाए, मुझे अच्छा बॉस मिल जाए, मेरी सेहत बिल्कुल ही ठीक रहे, आई शुड ऑलवेज बी फिट एंड फाइन. तो आइए चलते हैं आगे. व्हाट मैनिफेस्टेशन प्रोसेस इज. यस शाद भाई, प्लीज शेयर द स्लाइड. Sure, just a moment. Can you see the slides now? Yes, yes. Okay. See the very first slide, manifested desires. जब चित्र में जो इमेज में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक कप दिखाया गया है जिसको अलादीन का चिराग कहते हैं, और एक जिनी दिखाया गया है और मैग्नेट दिखाया गया है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, व्हाट यू फोकस इट ग्रोस. आप सभी के पास ये जिन्न है और ये कप है, जिसको रगड़ने के बाद में वहां से एक जिन्न बाहर निकलता है और कहता है कि हे मेरे आका, तुम्हारी हर इच्छा मेरे लिए आदेश है. योर एवरी सिंगल डिजायर इज कमांड टू मी. अब मैनिफेस्टेशन, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू
कि ये जो कप दिखाया गया अलादीन का चिराग, do you feel that you have with all with do you feel that you have with you? Please No, reply sir. by chatting yes no. Please share answer by No. No, sir. no. So is anybody else please, नहीं तो आप शेयर भी कर सकते हैं. मिली नो. Yes, दिवाकर yes. Yes, sir. अनिला जी yes. Yes, sir. श्रीनिवास तिवारी no. Yes. So somebody is saying yes and someone is saying no. लेकिन आपको बता दूं कि जब से हम जन्मे हैं ना, तब से लेकर ये हमारे पास यूनिवर्स की देन है, ये इन द फॉर्म ऑफ दिस कप मीन्स, हम अगले स्लाइड में आगे देखेंगे कि हमारा जो बाहरी मन है वो 10% होता है, लेकिन जो अंतर मन होता है, सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे सारे गोल्स को मैनिफेस्ट करता है, हमारे आदेश को पालन करता है, यहाँ पर दिखाया गया है आइसबर्ग, बर्फ की जो शिला होती है, उसका जो बाहर से जो तस्वीर दिखती है, जो परसेंटेज दिखता है, दैट इज ओनली 10, दैट इज आवर कॉन्शियस माइंड. 90% जो माइंड है दैट इज सबकॉन्शियस, जिसको शायद हम कभी जान ही नहीं पाए हैं. दुनिया का एक व्यक्ति जिसने इस मन के 90% का 10% यूज किया था, दैट इज ही इज अल्बर्ट आइंस्टाइन, द मोस्ट जीनियस माइंड जिसको कहा जाता है. हम अगर इस माइंड का 1% भी, इफ ही लर्न टू यूज इवन द 1% ऑफ दिस माइंड, वी कैन रियली डू द वंडर्स इन आवर लाइफ. ये सारी बहुत सारी बातें बहुत डिटेल्स में हमारे रैपिड माइंड में बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, जो आजकल मॉर्निंग मैजिक, कल मॉर्निंग भी चल रहा है, फिर इवनिंग में भी कोर्सेज चलते हैं, जहाँ पर सारा डिटेल्स में समझाया जाता है कि हाउ टू अट्रैक्ट योर लाइफ द वे यू डिजायर. यस, तो अलादीन का चिराग घिसने के बाद जिनी बाहर निकलता है. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कौन बताएगा मुझे? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. अलादीन के चिराग को घिसने के बाद जिन्न बाहर निकलता है, जिनी विद इन. अलादीन के चिराग को घिसने का अर्थ मतलब क्या होता है? कैन एवरीबॉडी टेल मी प्लीज? We focus what we desire, sir. We focus what we desire. What we focus on what we desire. When this giant gets awakened, वो सोया रहता है, लेकिन जिन्न को एक बार हमने जगाया तो हमारे लिए वो सब कुछ करता है जो हम चाहते हैं. उसको जगाने की प्रैक्टिस, पहले तो ये बात बता दूं आपको, हमारे पास सभी के पास ये अलादीन का चिराग है, एवरीबडी हैज, बट हाउ टू एक्टिवेट इट, हाउ टू, उसको कैसे अलादीन का चिराग को रगड़ के हम जिन्न को बाहर निकाल सकते हैं? कौन कौन बताएगा मुझे प्लीज? एनीबडी? सर सब सबकॉन्शियस माइंड में डालने के टाइम, मॉर्निंग एंड आफ्टर वेकिंग अप एंड बिफोर स्लीपिंग. It's very right. Yes, that time when you wake up and when you go to sleep, at that time our subconscious mind gets activated slowly. जैसे जैसे हम रिलैक्स होते हैं, the conscious mind goes into sleep and the subconscious gets activated. लेकिन इस अवस्था को what we call the alpha state, we can consciously go into alpha state by meditating. मैंने शुरू में मेडिटेशन कराई अभी, but that is also one of the way to go into alpha and get activated that joint within, that giant within, जिसको हम जैनी विदिन कहते हैं. Yes, slide first slide please शाल भाई. यहाँ पर दिखाया गया है कि मैनिफेस्ट योर डिजायर्स कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस है. सबसे पहले पर हमें डिसाइड करना होता है कि आपको क्या चाहिए. कई बार हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि मुझे क्या चाहिए, बिकॉज हमारे विचार बहुत ज़्यादा चेंज होते चले जाते हैं. मैं इस घर में हमेशा ही सुखी जीवन जीना चाहती हूँ, फिर बोलते हैं मैं तो दुखी हूँ इस घर में, मैं कैसे सुखी रह सकती हूँ, दिस इज लाइक दिस, दैट इज लाइक दैट. तो सबसे पहला मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस वो स्टार्ट्स विद आस्किंग. आस्किंग मतलब कहो क्या आप चाहते हैं. आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट लव, I intend to be the first class trainer. What are the desires or aspirations you got in any field, any area of the life? You are the very first process and decide what you want exactly.
उसके बाद आता है आपको बिलीव करना होगा कि आपको मिल सकता है, बिकॉज माइंड पावर सेज आस्क, मांगो, बिलीव, यकीन करो और पाओ, देन रिसीव। तो बिलीफ इज द एब्सोल्यूट वे टू ब्रिंग व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। उसके बाद आता है बिलीव कि आप उसके लायक हैं। कई बार जो मांगते हैं यूनिवर्स से, आई एम नॉट, इट इज नॉट गुड इनफ, आई कांट गेट इट, इट्स टू लेट, इट्स नॉट इन माई फॉर्चून, आई विल नेवर गेट इट, एटसेट्रा एटसेट्रा। द सबकॉन्शियस माइंड में जो लिमिटिंग बिलीव्स हमारे होते हैं, दे कीप ऑन काउंटर एक्टिंग our desires and we cannot go to that. फेथ होना चाहिए कि आई फुली डिजर्व इट। देन उसको विजुलाइज करना हर रोज फीलिंग के साथ, एज इफ यू हैव इट नाउ, जैसे आपके पास वो चीज इस वक्त है। अगर आप कोई गाड़ी चाहते हैं तो गाड़ी को आप उस वक्त ऐसा देखो जैसे गाड़ी आप चला रहे हैं। गाड़ी के जो 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 जहाँ बैठे हैं उसकी जो टेंडरनेस है वो फील कर रहे हैं। आपके दोनों हाथों से आप उस स्टीयरिंग को पकड़े हुए हैं, आपके राइट लेग से एक्सीलेटर पे पांव पड़ा है, लेफ्ट से क्लच पे, which is controlling both even the speed and the brake. Then you have to use all the five senses for visualizing and bring the feeling as if you have it now. Then come out, focus what you are grateful for. आपने विजुअलाइजेशन को करने के बाद we finish it, this or something better, manifest peacefully, harmoniously for the betterment of all the concern. मैं ये या इससे और अच्छा अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ जिससे सभी का भला हो। We give the chance to universe finally, and we have to really be grateful for that whatever you have at the present moment now. हमारे पास इस वक्त भी बहुत कुछ है जिसके प्रति हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, बट अवर all the time attention goes what we don't have. What we have उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, बट यू हैव टू फाइंड इट आउट। जैसा अनिला जी जो सुबह के सेशंस में बहुत अच्छा कराते हैं, जो मॉर्निंग मैजिक्स के भी कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हाउ टू मेक योर मॉर्निंग्स मैजिकल। Wonderful session of 15 minutes meditation she takes every morning. After that, she teaches how to write the gratitude journal. Then becomes trust the universe for its manifestation. This is the process. Next slide, please. Next to next. Yes, now you get the essence of what you are thinking about, whether you want it or do not want it. आप हर पल जीवन में कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मैग्नेट हैं। वी आर द बिगेस्ट मैग्नेट ऑन दिस अर्थ। जैसे रेडियो में जब फ्रिक्वेंसी को मैच करते हैं तो उस फ्रिक्वेंसी पर जो चैनल चलती है रेडियो के 91.1 FM या 92.7 FM, उसकी आवाज़ें हमारे कानों में सुनाई देती हैं। जब घर के टेलीविजन स्क्रीन पर हम चैनल को सेट करते हैं स्टार प्लस, तो वहाँ की तस्वीरें हमारे घर के टेलीविजन स्क्रीन पर दिखती हैं। वैसे ही हम जो सोचते हैं, हम जो फील करते हैं, वही तस्वीरें हमारी जिंदगी के हर एरिया में हमको दिखती हैं। दैट मीन्स एवरी मोमेंट वी आर क्रिएटिंग आइदर what you want or what you do not want, because you are the magnificent creator on this earth, but we are creating unconsciously the things which we do not want. Yes, next slide please. Universe always delivers to the vibrational essence of to your desires. बहुत ही important है जो भी आप मांग रहे हैं। Everything, every thought is a creation, and every thought, word, feeling is vibrating at a particular frequency. उस frequency पर जो भी चीजें यूनिवर्स में होती हैं, ब्रह्मांड में होती हैं, you keep on attracting, जिसका अर्थ होता है कि हमको सिर्फ उस frequency पर जाना है उसको अट्रैक्ट करने के लिए। अगर if you are thinking wrong, you are going to attract the things which you do not want. If you think in the right way, with the positive thoughts, positive feelings, positive emotions, then you attract what you want. That means हमको कुछ भी पाना है, whatever you want to attain or get, the only thing that you have to do is to vibrate
at the frequency of attraction. आगे हम देखेंगे कि वो क्या क्या फ्रिक्वेंसीज हैं जहां पर यूनिवर्स हमको डिलीवर करता है. देखो ये प्रोसेस सेज आस्क एंड इट इज गिवन. मांगो और वो दिया जाता है, लेकिन हम उसको रिसीव क्यों नहीं कर पाते हैं? जब मांगने का पूरा अधिकार है हमको, वी कैन आस्क फॉर एनीथिंग और यूनिवर्स इंस्टेंटली डिलीवर्स टू यू. बट टू मैनिफेस्ट, टू रिसीव दैट पर्टिकुलर डिजायर एज योर लाइफ एक्सपीरियंस, you have to be at the frequency of receiving, and that frequency we'll see in the future slides. Next slide please. You are getting what you are feeling, not what you are thinking. अगर आप सोच रहे हैं मेरी जिंदगी गुले गुलजार है, मेरी जिंदगी बेहतरीन है, मेरा जीवन साथी बहुत अच्छा है, मेरी साथ मुझे बहुत सहयोग देती है, मैं हर हालात में, हर सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल रख सकता हूं, खुश रख सकता हूं. लेकिन अगर आप खुश रह सकता हूं या रहता हूं बोल रहे हैं और फीलिंग नाखुशी की कर रहे हैं, you'll be attracting what you're feeling, not what you are saying or what you are thinking, because the feeling is the language of the subconscious mind. जिंदगी भर भी अगर आप बोलते रहें मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन अंदर फीलिंग अगर नाखुशी की है, दुख की है, तो एसेंस आपकी फीलिंग का आपको मिलता है, न कि व्हाट यू आर सेइंग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. देखिए बहुत ही बेहतरीन स्लाइड यहाँ ये बता रही है. टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स, 100% इंटेंशन प्लस 100% सरेंडर is manifestation. 100% intention, intend and love to be the wonderful trainer. I intend and love to be the godly person. I intend and love to be the very lovable person. एक इंटेंशन आपने लिया है, आई इंटेंड एंड लव. इंटेंड मतलब सी एक थॉट, एक डिजायर, इंटेंशन. शिल्पा जाटे cannot see the slide. Shad bhai, can you help her please? शिल्पा, आपको राइट साइड में छोटे जो आइकन है उसमें स्लाइड दिख रही होगी, उसमें आप जाके पिन कर लीजिए उसे, तो इट विल कम टू योर स्क्रीन. No, I cannot. ऑलराइट, नहीं तो सो लॉग व्हाट इन यू कैन करके डू, लॉग इन करो ना, है ना, लॉग ट्राई इन टू करके लॉग आउट लॉग इन टू करो. लॉग इन. सो जो भी स्क्रीन होगी वो आपके सामने आ जाएगी. अच्छा क्या करूं मैं? लॉग ऑफ करके लॉग इन कर लीजिए. अच्छा ठीक है. So here the slide says intention मतलब I truly desire it. Intention is a thought which says I desire it. Number two, I have got faith in it and I'm going to receive it. मतलब पक्का इरादा जिसको कहते हैं, that is 100% intention. आगे एक स्लाइड में और क्लियर करूंगा मैं इसको. प्लस 100% सरेंडर, because universe is giving everything to you through your, by asking to your subconscious mind, then only the manifestation can be there. Many people in my counseling, they very often ask me कि बलराम भाई मैं कब से सब चाह रही हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है. तो ऑलवेज ऐसे मुझे जीवन साथी चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे घर चाहिए, डैश डैश एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. बट आई ऑलवेज टेल देम इंटेंट what you want, then surrender. When you surrender, God knows exactly what is best for you, and क्योंकि he knows your present, past and future. Everything what he is offering to you is always for your good. Yes, next slide please. Yes, this slide says when you ask it is given. जब आप मांगते हैं तो आपको दिया जाता है. But at some point एक ऐसा समय आना चाहिए जहां पर आपको मांगना बंद करके टू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग
because expectation is a very positive emotion. Expectation again is a frequency of attraction. अगर आप एक्सपेक्ट करने की तरफ जाएंगे तो आपके अंदर जो भी निगेटिविटी है, why I'm not getting this, why it's too late, what's wrong with me, perhaps it is not in my fortune, etc. All these things, what they do, आगे हम देख what they do exactly, they put the resistance. See, यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा. See, if you ask anything, you write your gratitude journal, as I also write, but I always write why I want this. Why I want this. I am truly grateful. I am truly blessed to have the factory so close by my house. Why? Because it saves a lot of my time for traveling. When you give why, how comes easily? Whatever you aspire for, desire for, you always give as many as reasons why you want this. When you say why you want this, it softens your resistance and you can easily attract your desires. But if you tell when, कब होगा ये सब, कैसे होगा ये सब, that means you are offering the resistance to manifestation. To soften it, you have to give the reasons why you want it. When you give the reasons why you want it, how comes easily? Because how is not your domain, the domain of the universe. Yes, next slide. ठीक, पहले मैंने बताया कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव, मांगो, यकीन करो और पाओ. लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे बिलीफ अगर नहीं है लेकिन वी आर पैशनेट, हम उसके प्रति इतने ज्यादा भावुक हैं, पैशनेट हैं. जैसे महात्मा गांधी का ये पैशन था, मैं भारत को आजाद कराऊंगा. उसके इस दृढ़ता के संकल्प ने सारी हदें तोड़ दी बिलीफ्स की. इस देश को अंग्रेजों से कभी मुक्त नहीं कराया जा सकता. व्हाट द पीपल हैड द बिलीफ इन दैट. सो हियर इट सेज, इफ यू आर पैशनेट, और बिलीफ डज नॉट नीड टू बी स्ट्रॉन्ग. आपको अपने गोल्स को पाने की इतनी ज्यादा तड़प होनी चाहिए कि जैसे किसी व्यक्ति को पानी में डुबाया जाए, उसके सर को दबा के पानी में, पहली सांस को लेने के लिए उसके अंदर जो तड़प होती है, वही तड़प जिस दिन आपको अपने लाइफ के गोल्स पाने की होगी ना, तो सारी कायनात आपके लिए काम करेगी आपके लाइफ में उस गोल की तस्वीर को लाने के लिए. दिस इट गोस. यस, नेक्स्ट प्लीज. पीस इज द एसेंस ऑफ मैनिफेस्टेशन. जितने भी माइंड पावर के ट्रेनर्स हैं, जितने भी लोग मेडिटेशन रोज करते हैं, उनकी जिंदगी गुले गुलजार होती है, उनकी जिंदगी समृद्ध होती है, हार्मोनी से भरी हुई होती है, खुशहाल होती है, डिस्पाइट ऑल द ऑड्स और द चैलेंजेस, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस कमिंग टू यू. क्यों? हर रोज मेडिटेशन करने से क्या होता है, यू बिकम मोर पीसफुल, योर लाइफ बिकम लेस स्ट्रेसफुल, क्योंकि योर इनर स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग एवरी डे टू ओवरकम द सिचुएशंस आउटसाइड यू. देखिए, अभी एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाहूँगा. देखो, किस मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. जब आप यूनिवर्स के फ्रिक्वेंसी से अपने आप को मैच करते हैं ना, द फ्रिक्वेंसी ऑफ गॉड इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ लव, प्यूरिटी, डिवाइन नॉलेज, पावर, देन bliss. If you are matching, if you are working with these frequencies, your goals can automatically be manifested. यह एक बात में ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ. हमारी शिवानी बहन इसको पर जब लेक्चर कराती हैं तो पहला उनका स्लाइड आता है, या वो कहती हैं, यू गेट व्हाट यू वांट व्हेन यू आर व्हाट यू आर. ध्यान से सुनो सभी, आपको जो आप चाहते हैं वो तब मिलता है जब आप जो हैं वैसे हो जाते हैं. मीन्स वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल, वी आर द कॉन्शियसनेस, वी आर द स्पिरिट, एंड स्पिरिट इज लव, स्पिरिट इज डिवाइन नॉलेज, स्पिरिट इज प्लेजर, स्पिरिट इज लव,
spirit is power, spirit is bliss. All these 7 qualities of the soul, we get in touch during meditation, we experience it, and when we come into the physical world for discharging our duties, इस सृष्टि रंगमंच पर जब अपना पार्ट बजाने आते हैं किसी भी रूप में, किसी भी कार्य क्षेत्र में, तब हम अगर उस कॉन्शियसनेस में रहकर करते हैं जहाँ पीस, मैंने लिखा है कि इज द एसेंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, जहाँ पवित्रता है वहीं शांति है, जहाँ शांति है वहीं सुख है, जहाँ सुख है वहीं खुशी है, जहाँ खुशी है वहीं प्यार है, जहाँ प्यार है वहीं आत्मा या व्यक्ति सशक्त हो जाता है, वहीं वहीं उसका आनंद समय होता है। क्योंकि हर गोल के पीछे हमारा एक ही गोल होता है, मुझे धन चाहिए ताकि ज़िंदगी शांति से गुजरे, मुझे अच्छे संबंध चाहिए ताकि प्यार बना रहे, मुझे बड़ा घर चाहिए ताकि मैं कंफर्टेबल से जीवन जी सकूं और वहाँ मुझे हर प्रकार का सुख सुविधा हो। सीधा एवरी गोल के पीछे जो गोल होता है वो एक ही होता है, दैट आई शुड बी मोर पीसफुल, लवेबल, एंड जो मैंने क्वालिटीज बताई हैं आत्मा की। यस, नेक्स्ट स्लाइड। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैनिफेस्टेशन इंस्पायर्ड एक्शन। हर रोज जो व्यक्ति ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, उसके अंतर्मन की आवाज़ आती है। देखो, आपको मैं पहले एक एग्जांपल बताना भूल गया हूँ, बता रहा हूँ कि मेरे फैक्ट्री में एक आदमी ने बड़ा ऑर्डर दिया कारपोरेट का, ब्राह्मी आमला के कुछ हम प्लास्टिक पैकेजिंग इंडस्ट्री है हमारी, जहाँ पर उसके पाउचेज बनाते हैं, डिस्प्ले फोल्डर्स। तो उसने मुझसे कहा कि 40,000 पीस मुझे चाहिए, रेट सब फाइनल हो गया। तो मैंने उसको एक मैसेज टेक्स्ट किया व्हाट्सएप पर कि शुड आई गो अहेड विद प्रिक्योरिंग द मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन, प्लीज गाइड मी या टेल मी। तो उसने बोले यस। तो मैंने क्या समझा कि उसने ऑर्डर दे दिया है, आई ऑर्डर फॉर द मटेरियल। 6 दिन तक उन्होंने कोई भी डैंगलर्स वगैरह आए नहीं, पोस्टर अंदर भर के देते हैं हम लोग। तो मैंने जब उनको पूछा कि वेयर द पोस्टर मटेरियल इज विथ मी नाउ, बोला आई हैव नेवर ऑर्डर्ड द मटेरियल। अब इतना हमारे प्लास्टिक में 70% रेट बढ़ गए आफ्टर लॉकडाउन, 70%। इतना सारा माल इतने बड़े ऑर्डर के लिए आके पड़ा है मेरे आंखों के सामने। आई वॉज इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। किसी अभी मन क्या कहेगा, ओ माई गॉड क्या हो गया, सब क्या बात कर रहा है ये। लेकिन हम हमेशा ही कहते हैं कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मेरे मन से एक ही बात निकली, भगवान तू जानता है सत्य क्या है, या तो गलती मुझसे हुई है या उसके तरफ से हुई है, लेकिन अब तुझे संभाल लेना है। उसी दिन, ये बात 11 बजे की, दोपहर को करीबन 8 दिन पहले की, द सेम डे अराउंड noon 3 PM he asked me for another order, and most luckily the same gauge of the material, the same width, thickness and the width, both were telling of the material। और 40,000 पीस का वो भी ऑर्डर था, लेकिन इस ऑर्डर में उससे मुझे 1.5 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट होता था। हुआ है, अभी काम चल रहा है, बस वी आर फिनिशिंग दैट जॉब डे फॉर टुमारो। इसका मतलब ये है कि जब मैंने भगवान से मांगा कि अब तेरे ऊपर है, तू संभालना, अब इतना सारा माल आके पड़ा है, पार्टी ने ऑर्डर के लिए ना बोल दिया है, महंगा इतना मटेरियल है, कहीं यूज नहीं होगा, लेकिन मैंने क्या कहा, एक ही बात कही, बस तू संभाल। ही नोज ही हैज टू, बलराम हैज टू वांट टू गेट डिपार्टेड विद दिस मटेरियल व्हाट इज कम टू हिज फैक्ट्री नाउ। अभी देखो, उसमें मुझे उस जो प्रोडक्ट था उससे थोड़ा प्रॉफिट भी ज़्यादा मिला है, भले मटेरियल करीबन 10% 15% बच जाएगा जो कहीं भी हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन सी द ब्यूटी हाउ यूनिवर्स रिटर्न्स यू बैक वंस यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट हिम, वंस यू आर रिलैक्स, वंस यू आर टेंशन फ्री, वंस यू आर ऑप्टिमिस्टिक, वंस यू आर रिलायबल, वंस यू आर फेथफुल, हाउ द यूनिवर्स रियली गिव्स यू। ये मेरे जिंदगी में से कई सारे चमत्कार मैंने देखे, लेकिन रिसेंटली जो 10 दिन पहले हुआ है, दैट आई डिस्क्राइब्ड इट टू यू। इंस्पायर्ड एक्शन मतलब अंतर्मन की आवाज कहती है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माय इनर स्पोक टू मी, जरूर ऑर्डर आएगा इसका, बिकॉज आई वाज टोटली ऑप्टिमिस्टिक कि मेरा बुरा, मैंने किसी का बुरा किया नहीं है, मैंने गलत किया तो मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता। यस, मतलब लास्ट, यस नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, इट सेज फील गुड। फील गुड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग व्हाट यू वांट। If you're not feeling good, you're attracting what you do not want. जो भी आप चाहते हैं, धन चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, अच्छा जॉब चाहते हैं, अच्छा बिजनेस चाहते हैं, अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं,
आप अच्छी जगह घूमना जाना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं ना, बस एक बात का विशेष ध्यान रखो कि इफ यू आर फीलिंग गुड, you are in the alignment with the universal frequency or with the frequency of your desire. आपको और कुछ नहीं करना होता है, आप सिर्फ कहो मुझे ये चाहिए, लिखो, वो गोल बन जाता है। कभी मैं आपके सामने में गोल का भी लेके आऊंगा सेशन। मेरे पास बहुत अच्छा तैयार मटेरियल है स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी, जहां पर about 132 slides I have got. I was taking 2 days continuous session there. We'll come sometimes on the goals, how to achieve your goals and how to be stress free. So here I think I should finish my lecture, and now we open the session. Shazbhai, please take over for the questions if you got any. Yes, please. Thank you very much, Balram bhai. It was really inspiring session. I would request everyone to please unmute and let's give a warm round of applause for Mr. Balram Thalreja. Thank you. Right, mind with the genie lamp was quite an amazing metaphor, and we do realize that God has that mind with us, has that lamp genie with us, just that we do not know how to use it. And you have given very nice small ways and simple ways and techniques to use this genie and lamp. Okay. So we are open to questions now. Anybody who has the questions, you can mention in the chat or you can unmute and ask. Okay. Also, pasting the link to join the Midweek Magic Club WhatsApp group. So in case if anybody is new and is not a part of the WhatsApp group, please do join the group so that we can keep posting all the nice things. Millie has some question, I think. Millie. Okay. Yes, Millie, your question is how to feel happy when, what is the basic technique? See, always universe plays in your favor. आपका जीवन साथी बनकर Almighty Authority always goes with you. If anything goes wrong in your life, you go on the right track. Feeling is the feedback mechanism from the universe side to you. If you're not feeling good, that means universe says something is going on wrong in your life, and because thought generate the feeling. You check your thoughts. How to check your thought? Then the feeling accordingly can be changed. Yes, Anila ji, I would like you also to please share your answer to this question. Sure, sir. You very rightly already said that our emotions are our guidance. So that is actually the language with which we communicate with the universe, and the universe communicates with us. So if there is something that is causing you unhappiness in your life, that means that you are off track. That means that there is something that has to change. You have to look for ways that make you happy. आपको किस चीज से खुशी मिलती है? उन छोटी छोटी चीजें, they don't have to be very big things. छोटी छोटी चीजों को आप करना शुरू करें तो आपको और भी इंसाइट मिलेगा, क्योंकि ये जब आप when you work at being happy, you move towards alignment with the universe. और जब आप यूनिवर्स से अलाइन हो जाते हैं, then you start receiving guidance, you start receiving inspiration and ideas and opportunities. All right, so it is our job to manage our emotions. So look for ways in which you can feel happy. Anything, whatever gives you. Now the thing is, we are all unique. सबका अपना अपना होता है तरीका, right? तो उस तरीके को ढूंढिए और वही चीज कीजिए. It does not have to be very very big, but it is probably unique to you. So that is our job, to raise ourselves to match the vibration of the universe. तो ये तरीका होता है मिली. देखिए मिली जी, और आपको मैं एक बताऊं कि हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनिंग्स में एक टिपिंग पॉइंट हो जाते हैं, टिपिंग पॉइंट, where we go gradually from negative, then we come to centralized position, then we go to the positive side.
ये सारी बातें डिटेल्स में अगर आप सीखना चाहते हैं तो दीज आर द हमारे पास बहुत सारे वर्कशॉप्स ऐसे चलते हैं आगे, आप उनमें रह के वहाँ और डिटेल्स इन चीज़ों को सीख सकते हैं, वेर यू कैन रियली नो हाउ टू, वहाँ वी टेक अ स्मॉल सेशन इन दैट हाउ टू चेंज योर फीलिंग लिसनिंग टू द म्यूजिक। ऐसे बहुत सारी बातें हैं that you can when you join the workshop you can learn there also. Yes, next please. Thank you, Thank Anila you, ji. sir. Thank you, Anila. Thank you, Balram. In fact, I also would like to add something that whatever we are looking for, if you are looking for happiness or if you're looking for money, if you're looking for anything, it's available in abundance. It's just like we are standing in front of ocean, uh, and what we are standing with is up to us, and that's our limitation of our mind. So some of us stand with just a glass to fill the water. Some of us do have a bucket to fill the water. कुछ लोग टैंकर ले आते हैं, but once our mind actually opens up, we are actually not looking for a tanker but probably 10,000 tankers. Okay, that's when actually our mind opens up, and when even if we fill those 10,000 tankers, the water does not reduce in the ocean. So there's actually abundance of everything. Thank you. Excellent, excellent, Thank Shahid. you. Mhm. Okay, do we have many more questions? All right, so Shivansh has questions. Please tell me how to stay happy if some financial loss happens with us due to fault of others. Great question, Shivansh. Balram and Anila, I would like to both of you to give some insight on this question. Balram, I would like to start with you, please. See, now as I already told you, feeling it is the frequency of attracting what you want. If you're into financial crisis, that means you need money, right? But if you feel the lack of money all the time, what you are focusing, that you are attracting. No matter what, there are certain things you are quite eligible to work. आपकी सेहत अच्छी है, आपका टैलेंट है, आपका एक्सपीरियंस है. देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस moment also when you're financially stuck up, that time so many things which really can generate the money, can make you you are quite eligible to go ahead for attracting the money. The only thing is that you have to have the stable mind. Once you lost from the mind ना, आपकी स्थिति जितनी ही ज्यादा स्टेबल स्थिर होती है, मैं तो ये कह सकता हूँ, कहते हैं कि जहाँ स्थिति स्थिर होती है वहाँ परिस्थितियाँ समाप्त हो जाती हैं. बट योर ओन मेंटल डिस्टर्बेंस, कन्फ्लिक्ट, chaos, resentment, गिल्स, ग्रीफ, वरीज, दे कीप ऑन डिस्ट्रैक्टिंग योर माइंड, और वो आपको कभी भी उस फ्रीक्वेंसी पर नहीं ले जा सकते हैं जहाँ से पैसा आपके पास आ सकता है. यस नीला जी प्लीज. आपने बहुत अच्छी तरह समझाया है कि वो जिस फ्रीक्वेंसी पे लॉस हुआ है उस पे गेन नहीं हो सकता है. वो बिल्कुल ऑपोजिट एंड्स हैं. एक लैक का फ्रीक्वेंसी होता है, एक अबंडेंस का होता है. अब देखिए, हम अपनी जिंदगी में बहुत वी क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस इन आवर ओन लाइफ. जहाँ पे हम फाइनेंशियल अबंडेंस भी क्रिएट करते हैं, वहाँ पे हम फाइनेंशियल लॉस भी क्रिएट कर सकते हैं. अब आपके लाइफ में इस वक्त आपने कुछ फाइनेंशियल लॉस एक्सपीरियंस किया, मोस्ट लाइकली बिकॉज हो सकता है उससे पहले आपको कुछ फियर रहा हो कि कहीं मेरे को कोई लॉस ना हो जाए, कहीं मुझसे मेरे हाथ से पैसा ना चले जाए. तो वो भी एक क्रिएशन था. मगर अगर आप वो चीज क्रिएट कर सकते हैं तो सोचिएगा कि आप फाइनेंशियल गेन या फाइनेंशियल अबंडेंस भी क्रिएट कर सकते हैं. आप ही के अंदर है वो ताकत. मगर जिस फ्रीक्वेंसी में आप अभी हैं, यानी कि आप लॉस की तरफ फोकस है, उस पे आपको गेन नहीं हो सकता है. आपको अपना फोकस थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा टूवर्ड्स फाइनेंशियल गेन. अब वो आप कैसे करेंगे, वो चीज आप कैसे करेंगे? एक तो अगर बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट है इस वक्त, तो शायद आपको अपना फोकस थोड़ा चेंज करना पड़े, उस पर आप फोकस ना करें. Maybe that is not possible, in which case you will have to find ways in which you are looking at the abundance in your life. आए या जाए, आपकी लाइफ में abundance और भी चीजों की होती है. Try to shift your focus towards that. कितना भी मुश्किल हो वो आपको करना ही होगा, क्योंकि लॉस की फ्रीक्वेंसी में आपको लॉस ही होगा. अगर आप गेन करना चाहते हैं तो आपको अपना फोकस गेन की तरफ करना पड़ेगा. ये है आपका
come. That is the work that has to be done. All right, Shivansh. इरशाद भाई एक मिनट बोलना चाहूँगा. See, हमारे एक भाई साहब हैं, he is into very much Brahma Kumaris, Nairobi, Kenya. I had been about 2 years back to Kenya. Few years back, he lost everything. He had 45 companies internationally, 45 companies. He lost everything. Everything he lost. He said, when I can create, I have created all these things, and that is my creation. I can recreate all those things. He took that as a challenge, and now he is prospering with a better intensity of having much more abundance with his stable mind, with his, you can say, the focus on, you can say, the attention on how to recreate all those things. The better, the bigger thing is loss. If you're got outside you, and if you're lost here, nothing can be changed. Keep it stable, use law of attraction, and you can see that everything in the life what has been lost, you can regain that with the power of mind. And that manobal, that power of mind comes through meditation. ये शाद भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है बलराम भाई आपने, अनिला आपने भी. Just a couple of things I would like to add here. When you talk about law of attraction, we take 100% responsibility of our life. And whatever is happening to us has been attracted by us. It's just that the other person, we cannot blame it because he has helped us manifest what we have been thinking about. If अगर हमारा डर है कि हमारे पैसे चले जाएंगे, तो वो डर मैनिफेस्ट होगा ही होगा. जो दूसरा इंसान है आपको सपोर्ट कर रहा है आपका आपका डर मैनिफेस्ट करवाने में, तो हम उसे ब्लेम नहीं कर सकते. हम ब्लेम सिर्फ अपने आप को कर सकते हैं. एंड वंस वी टेक 100% responsibility of our life, that's when our life changes. Okay, that's when we take charge of our life. That's when we create our own life with our own desires. So it's important that we take charge of our life and move on. जो भी इंस्टेंसेस होते हैं लाइफ में हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं. इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न फ्रॉम दोस इंस्टेंसेस एंड डू नॉट मेक द मिस्टेक्स अगेन. वंस यू हैव लर्न द लेसन, दैट इंस्टेंस वुड डिसअपियर फ्रॉम योर लाइफ. वो आपकी लाइफ में दोबारा आएगा ही नहीं आएगा. लेकिन अगर आपने वो लेसन लर्न नहीं करा है, तो वो इंस्टेंस आपको लेसन सिखाने जरूर आएगा वापस. सो आई थिंक important is to take charge and move on. Thank you. Any more questions? In fact, here I would like to just let you know, guys, that we Monday to Friday we do a 5-day EHAP session, which happens 6 p.m. to 7 p.m. Every Monday to Friday. Okay, so I'm just here posting a link, and the interesting part is we have kept the price so low that it's as good as buying a cup of coffee. So and it's a life-changing session. So I would Dr. Anila is the person who takes this session, and we share certain life-changing habits, which it's with the practicals. So once we implement these habits, things would automatically start changing in our lives. And very important way to improve our habits and move towards the manifestation. So here's the link in case if anybody wants to register, can register for the next Monday workshop, Monday to Friday. It would be a 1 hour daily, 6 p.m. to 7 p.m. Okay, any more questions which we can answer? Right, so I think we are through with the questions. So thank you once again, Mr. Balram Talreja, for taking this wonderful session, and Dr. Anila Damodar for sharing your insights with us. Okay, thank you very much. So we come to the close of the session. All of you have a nice day, and thank you very much for taking out time and being here on the Wednesday evening. Thank you. Namaskar. Thank you all for being here. Thank you, ma'am. Thank you. Thank Thanks you. for the wonderful.